So hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Apurva Pahava and hope you all are doing great. So today's video is all about my filing procedure, that how I stepped into this filing system, what problems I faced, like from everything, like from zero to my visa. I'll tell you everything that what has happened and how I overcome those things. My last video was all about my IELTS experience and what I've gone through at that time period. So if you have not watched that video yet, please go and watch it out. Link is in the description box. So without any further delay, let's get into the video. So this video is going to be really very informative. I have shared each and every step which I have gone through for you face that problem. So I have tried to include all those steps which is included in your filing procedure. So इस वीडियो को एंड तक देखना एंड इफ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, टू योर family members and to the one who is needed to see this video. My result came on 2 September and in the result I have scored a really good band score, that was 7 bands, and I got my TRF on 5th of September because we cannot apply without TRF. First of all, TRF is an important thing to apply and वैसे ही मेरा 12th का स्कोर भी आ चुका था, दैट वाज ऑन 22nd of July आई गेस. सो आई हैव माई ईच डॉक्यूमेंट prepared to apply for Canada in Canadian institution. Few friends and few relatives recommended me one of an agent from गंगानगर itself. So we were like कि ठीक है, अगर हमें गंगानगर के अंदर एक अच्छा एजेंट मिल रहा है to apply our file, so why to go out? Like everybody will think कि अगर हमें हमारे ही सिटी में रहते हुए एक अच्छा एजेंट मिल रहा है, सो आई डोंट थिंक सो कि हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है, राइट. दैट इज़ वॉट हैपेंड विद मी. हमने भी यही चीज़ सोची कि जब हमें एक लोकल लेवल पे एक अच्छा एजेंट मिल रहा है तो बाहर जाके हमने क्या करना है. तो हमने यहीं से अपनी गंगानगर में ही मैंने अपनी फ़ाइल लॉन्च करवाई. फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे TRF आई, मैं गई वहाँ पे. I was really disappointed at that point of time. Reason of disappointment was कि they were not suggesting me any courses, they were not suggesting me any colleges. उन्होंने बस मुझसे पूछा कि किस एरिया में जाना है. टोल्ड देम नेम टोरंटो, कि हाँ मुझे टोरंटो वाली साइड जाना है. बट मुझे उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं दिखे थे कि उन्होंने कोई मेरे को ढंग का कॉलेज या ढंग का कोर्स कोई सजेस्ट किया हो. देन आफ्टर अ डे आई थॉट कि मुझे ये कोर्सेज में जाना है, तो लेट्स गो. The first course I tell them was Bachelor's of Interior Designing, and the second I told them Office Administration, because I was not into that field. I was not knowing that what should I do outside to have a good, future ahead. तो मुझे उस चीज़ के बारे में ऐसी कोई ख़ास नॉलेज नहीं थी. सो आई प्रेफर कि आपके एजेंट को ही आपको बताना चाहिए कि हाँ ये कोर्स ऑप्शंस हैं, इनकी अच्छी वैल्यू है, सो यू कैन गो अहेड विद देम. बट ठीक है, जो हुआ, again I went through, this was a little bit messed up in my situation. फिर भी चलो ठीक है, मैंने कोर्सेज दिए. they gave me some colleges. They gave me one college, Yorkville University, for bachelor's in interior designing, and another one was Conestoga College for office administration. See, मेरा Yorkville University का ऑफर लेटर 15 days में आ गया था and I was like happy कि हाँ ऑफर लेटर आया. But when I had worked with few people around me, they suggested me कि Yorkville में नहीं जाना चाहिए because it is not that renowned university. You have a good band score, so you should go for some another college. ठीक है, I thought to wait for Conestoga, but मेरा first day से मन था कि I want to go to Canam Chandigarh. Canam is in sector 17D. You all can visit over there. I was absolutely satisfied in the very first time. The courses they suggested, the colleges they gave me, I was really satisfied with them, and the way of presentation was really amazing, and the way they coordinated with me. I was in Ganganagar and they were in Chandigarh, but still my filing procedure went so smooth. थोड़ी बहुत देखो परेशानियाँ हर जगह आती हैं. आई एम नॉट सेइंग कि कैनम से लगवाई तो मुझे बिल्कुल परेशानियाँ नहीं आई, बिकॉज देयर वाज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन अस. आई फेल्ट कि उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी, एंड स्टिल दे आर हेल्पिंग मी. मेरा जाने का टाइम भी आने वाला है, बट स्टिल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माई एजेंट इज़ रियली हेल्पिंग मी इन ईच एंड एवरीथिंग. आई वॉज देयर फॉर 2 to 3 hours इन दैट कैनम ऑफिस. उन्होंने मुझे काफ़ी कोर्सेज सजेस्ट किए. देयर वर अ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस दे गेव मी, द लिस्ट ऑफ कोर्सेज दे गेव मी दैट आई कैन गो फॉर इन टोरंटो एरिया, लाइक इन Ontario province.
So I applied in two of the colleges. One was Durham College and one was Niagara College. In Durham College, I have the two courses I applied in: Law Clerk Advanced Co-op and Paralegal. There was two courses related to law. I applied in Durham College, and in Niagara College I applied for General Arts and Science because I had no option left to apply for any other college because कॉन्स्टेबल में तो ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था मैंने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का. So there was no need to apply once more and go ahead with it. दुरम कॉलेज में जो मेरी ऑफर लेटर की फीस थी दैट वाज 100 CAD एंड नाइग्रा में मेरा फ्री अप्लाई हुआ था बिकॉज ऑफ फी वेवियर गोइंग ऑन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो मेरा अप्लाई हुआ. मेरा नाइग्रा का ऑफर आ गया था इन 15 days, पर मेरे को नाइग्रा में जाने में कोई ऐसे वो नहीं थी बिकॉज दैट वॉज नॉट दैट गुड कोर्स. आई हैव अप्लाइड फॉर वेरी गुड कोर्सेज इन दुरम कॉलेज, सो आई प्रेफर दुरम. मेरे पास ऑफर आ गया था विद इन 1 month आई गेस. यस 1 or 1.5 month में मेरे पास ऑफर आ गया था एंड आई नीड टू पे माई फीस टिल टाइम ऑफ फेब. आई हैव लाइक 3 to 4 months की मुझे फीस देने में टाइम था. इस बीच में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइंड अप दैट आई हैव टू कंप्लीट. ऑफर लेटर तो मेरा आ गया था. आई नीड टू गो फॉर मेडिकल ऑल्सो, फेसिस भी करानी है, GIC, लॉट ऑफ थिंग्स. अब मेरा यहाँ से मेन प्रोसीजर शुरू होता है कि फीसेस कलेक्ट करनी है एंड देन मेडिकल. मेरा ऑफर लेटर आ गया था आई गेस नवंबर समथिंग में एंड उसके बाद आई आस्क्ड माय टीचर कि चलो मेरा मेडिकल बुक कर दो, आई कैन गो फॉर मेडिकल. मेरा मेडिकल हुआ था मैक्स मोहाली के अंदर. अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे मेरे को 3 to 4 hours लग गए थे. उसके अंदर हुआ कुछ ऐसा था कि मेडिकल स्लिप, मेरे टैटूज़ हैं बॉडी पे काफ़ी सारे, तो ऑब्वियसली मेरा टैटू का भी मेडिकल हुआ था. मेरा मेडिकल चार्जेस थे आई गेस 6600 प्लस टैटू के थे 3600. टोटल करके 10,000 समथिंग मेरा मेडिकल में मुझे फीसेस लगी थी. मेरा मेडिकल हो गया. दैट वाज अ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट. मेरा मेडिकल था मैक्स मोहाली में. एंड देन अबाउट माई फीसेस, बहुत आराम से फीसेस हुई थी. मेरी सिंगल अकाउंट से मैंने फ़ीस कराई थी, HDFC अकाउंट. आई डिड थ्रू फ्लाईवायर. मैंने कराया था INR2 CAD. बहुत मैं आपको दिखा दूँगी, स्क्रीन पे आ जाएगा. मेरी जो मैम ने मुझे बना के दिया था INR2 USD. फिर मैंने कॉलेज में बात हुई, दे सेड कि नहीं आप INR2 CAD ही करो, आपको बहुत महंगा पड़ेगा. देयर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी कि मुझे सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे. आई एम नॉट सेइंग बैड अबाउट देम, बट थिंग इज़ कि वो INR2 USD फिर 2 CAD करवा रहे थे, बट आई वॉन्ट टू गो टू INR2 CAD. मेरे को इसमें कॉलेज की तरफ से बहुत हेल्प मिली थी, बहुत सपोर्ट मिली थी. देयर वर लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी एंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे सब. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम बिकॉज बहुत स्मूथ प्रोसीजर हुआ मेरा. दिसंबर एंड में मेरा सारा कुछ हो गया था, लाइक GIC भी चली गई थी, फीस भी चली गई थी. एंड ऑफ दिसंबर में सब कुछ हो गया था एंड आई वॉज रियली हैप्पी अबाउट दैट. एंड उसके बाद द मेन प्रोसीजर वॉज माई फाइलिंग. मुझे मैम ने कहा कि SOP लिखो एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे टीचर्स ने कहा था कि खुद SOP लिखो. मैंने खुद ने SOP लिखी थी एंड आई नो एवरीथिंग दैट व्हाट आई हैव रिटन दैट what I have gone through, क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, कैसा कैसा सब कुछ होगा. So if someone asks me some question regarding my SOP, at least I know them. So please write your recipes yourself. It will help you a lot in future. ठीक है. फिर मेरा 12 जनवरी को मेरी फ़ाइल लॉन्च हो गई थी. आई वॉज रियली हैप्पी कि हाँ मेरी फ़ाइल लॉन्च होगी विद ऑल द थिंग्स. लाइक माई मेडिकल वॉज क्लियर्ड. धीरे धीरे करके सब कुछ क्लियर आ रहा था ना, बहुत खुश थी मैम. देन मेरा जो PPR आई दैट वाज ऑन 25 Jan. आई कांट एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस ऑन दैट डे. रात को लाइक 11 o'clock के अराउंड मेरे को मेल आती है दैट देयर इज़ अ मैसेज इन योर GC की, प्लीज़ चेक इट आउट. मैंने अपनी GC की खोली एंड आई सॉ दैट PPR request. I was so happy. Within 12 days I got my PPR request. I cannot express my happiness on that day. I was really very happy. And then मेरा पासपोर्ट कलेक्ट होता है, मेरा पासपोर्ट स्टैम्प होकर आता है. I'll show you my passport. I'm really happy for that. And filing procedure is not that big. कुछ भी नहीं है, just be sincere and अपनी फाइलिंग के अंदर you don't just leave things on the agent कि वो कर लेगा. एजेंट तो कर ही लेगा, उसका काम है. Just get indulged in your filing. You will get a lot of knowledge and a lot of things to know. And one more important thing I want to add on here is कि आप किसी भी गंगानगर के एजेंट की बात नहीं कर रही हूँ, कहीं भी चले जाओ, यू विल बी चार्ज फॉर योर फाइलिंग. लाइक जो मेरा एजेंट था गंगानगर वाला जिनके पास मैं पहले गई थी, उन्होंने मेरे को फाइलिंग चार्जेस के लिए बोला था 20 to 25,000. एंड यूजुअली दिस इज़ द रेशियो. हर जगह इतना ही चार्ज होता है.
कहीं थोड़ा ज़्यादा हो जाता होगा, बट यूजुअली 25,000 20,000 इतना ही लेते हैं. बट अ गुड पार्ट ऑफ कैनम आई फाउंड इज, एक तो वो इतनी हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स की एंड दे डोंट चार्ज फॉर द फाइलिंग. सो हियर इज़ माई पासपोर्ट विच इज़ स्टैम्प्ड एंड ये मेरा ड्रीम था कि मेरे पासपोर्ट पे कनाडा की स्टैम्प हो एंड आई हैव अ गुड कैनेडियन स्टडीज़. सो दिस इज़ अ ड्रीम फुलफिल्ड. मेरा पासपोर्ट मेरे को 14 फेब को मिल गया था. बहुत से जनों की क्वेरीज थी कि अगर आपका वीज़ा आ गया तो आप गए क्यों नहीं हो. लाइक मेरा वीज़ा फेब का आया हुआ है, सो आप गए क्यों नहीं हो. सो लेट मी टेल यू कि मेरा जो इनटेक था दैट वो सितंबर इनटेक. जो मेरी क्लासेस हैं वो 5-6 सितंबर से हैं. Okay, so this is the end of the video, and if you like the video, do like, comment, subscribe and share to your friends and family members, and please press the bell icon for the further videos and the information.